حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ منفی اخلاق کے باب سے گزر رہے ہیں۔ وہ اخلاق جو ایک مسلمان کو برا بنا دیتی ہیں، وہ اخلاق جو مسلمان کی زندگی کو مجروح کر دیتی ہیں، ان اخلاق سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک۔ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو پڑوسی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک پڑوسی تو ہمارے گھر کے بازو والا آدمی رہتا ہے، ہمارے گھر کے دائیں جانب بھی ہمارا پڑوسی، بائیں جانب بھی ہمارا پڑوسی، سامنے والا بھی پڑوسی، پیچھے والا بھی پڑوسی۔ تو ہمارے گھر کے بازو رہنے والا یہ ہمارا پڑوسی کہلاتا ہے۔ اور دوسرا پڑوسی ہمارے ورک پلیس پر، ہماری جہاں پر کام کرنے کی جگہ ہے، ہماری آفیسز ہیں، ہمارے فیکٹریز ہیں، ہمارے کام، ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے کام کی جگہ جو بازو ہمارے رہتا ہے، مان لو میری شاپ جو ہے، مارکیٹ میں میری شاپ ہے، میرے آزو بازو والا وہ میرا کام کرنے والا وہ میرا پڑوسی ہے۔ آفس بیٹھ کر ہم کام کر رہے ہیں، رائٹ چیئر والا میرا پڑوسی ہے، لیفٹ چیئر والا میرا پڑوسی ہے۔ الغرض ورک پلیس کے ہمارے بازو میں جو رہتا ہے اس کو بھی پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا پڑوسی سفر میں جو ہمارے بازو بیٹھا ہوا رہتا ہے وہ بھی پڑوسی کہلاتا ہے۔ ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، ہمارے آزو بازو والا، ہمارے سامنے والا وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ ہم بس میں جا رہے ہیں، ہمارے سیٹ کے بازو بیٹھنے والا وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ الغرض پڑوسی گھر کے بازو رہنے والا بھی، کام کی جگہ رہنے والا بھی، سفر میں رہنے والا، اس کو پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم پر ایک حق ہوا کرتا ہے، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم پر دو حقوق ہوا کرتے ہیں، اور کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم پر تین حقوق ہوا کرتے ہیں۔ اب ہمارا گھر ہے، اس گھر کے بازو یا اس ورک پلیس کے بازو اور ایک یا سفر کے بازو جو ہمارے بازو ہے، وہ اگر ایک نان مسلم ہے تو اس کا ہم پر ایک حق ہوا کرتا ہے۔ گھر کے بازو میں رہنے والا نان مسلم ہے، ورک پلیس پہ رہنے والا ہمارے پاس نان مسلم ہے، سفر میں ہم جا رہے ہیں، ہمارے سیٹ کے بازو رہنے والا نان مسلم ہے، تو اس کا ہم پر پڑوسی ہونے کا ایک حق ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یعنی یہ نہیں ایک حق والا ہے یہ، اور اگر وہ پڑوسی ہمارے جو بازو میں ہیں اگر وہ مسلم ہیں تو اس کے دو حقوق ہوا کرتے ہیں، اس کے ہم پر دو حق ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق ہے، دوسرا اسلام کا حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں، تو اس میں سے جو ہے اگر مسلمان ہے ہمارے بازو رہنے والا تو ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے، اور دوسرا اسلام کا اس کا حق ہوا کرتا ہے۔ اور اگر وہ مسلم رشتہ دار ہے، وہ مسلم اگر رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہوا کرتے ہیں، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق ہے، دوسرا اسلام کا حق ہے، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا حق ہے، کیونکہ رشتہ دار ہونے کے ناطے وہ صلہ رحمی کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو ہمارے کچھ پڑوسی ایک حق والے ہوتے ہیں اگر نان مسلم ہیں، اگر جسٹ مسلم ہے تو اس کے 2 حقوق ہیں، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق ہے، دوسرا اسلام کا حق ہے، اور اگر وہ بازو رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کے 3 حق ہم پر ہوتے ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے، دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق ہے، اور تیسرا اسلام کا حق ہے۔ یہ 3 حقوق والے پڑوسی ہمارے پاس ہوا کرتے ہیں۔ اور
इन्हीं पड़ोसियों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। साहबा करम बैठे हुए हैं, अल्लाह का रसूल बैठे हुए हैं, अचानक आप कह रहे हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। वह आदमी ईमान वाला हो ही नहीं सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तीन तीन मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक मर्तबा फरमाया, फिर उसके बाद फिर फरमाया, फिर उसके बाद फिर फरमाया। तब साहबा करम ने पूछा, क़ील मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल आप जो बेईमान 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 कह रहे हैं वो कौन बेईमान है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जो अपने पड़ोसी को अमन के साथ रहने नहीं देता, या जिससे लोग जिसके पड़ोसी अमन से नहीं रह सकते हैं, वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता है। तो गोया अगर कोई आदमी अपने पड़ोसी को सता रहा है तो वह ईमान उसका धीरे धीरे घटते जा रहा है। और ईमान अल ईमान यजीद व यनकुस, ईमान ये हमारा जो है कभी बढ़ता रहता है और कभी घटता रहता है। तो ये जो आदमी अपने पड़ोसी को सताता है उसका ईमान डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, नीचे जा रहा है। ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी महफूज नहीं है उसके तकलीफ से, उसके सताने से, तो फिर वह आदमी ईमान वाला नहीं, उसका ईमान कमजोर होते जाता है। फिर जरा देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक मौके पर बैठे हुए हैं, साहबा करम भी बैठे हुए हैं। किसी साहबी ने तज़किरा फरमाया कि इन्न फुलानता, एक फुला औरत है अल्लाह का रसूल, जो है कम नमाज पढ़ती है, कम रोजे रखती है और जो है ज्यादा अमल नहीं करती, लेकिन अपने पड़ोसियों को अच्छा सलूक करती है। तो कहा अल्लाह के रसूल ने वो जन्नती है। और फिर उन्होंने कहा और एक औरत है जो बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत रोजे रखती है, बहुत दीन पर अमल करने का दावा करती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे तकलीफ में रहते हैं, अपने पड़ोसियों को सताते रहती है। तो अल्लाह के रसूल ने उस सताने वाली औरत को, अपने पड़ोसियों को टॉर्चर करने वाली औरत के बारे में कहा, हिया फिन्नार, वो जहन्नम में जाने वाली है। तो गोया एक आदमी या एक औरत अपने पड़ोसियों को तंग करने वाले हैं। वो तंग करने की अलग अलग शक्लें हो सकती हैं। अपने पड़ोसियों को तंग करने की अलग अलग शक्लें हो सकती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई हम इतना शोर मचाते हैं अपने घरों के अंदर, टीवी के जरिए, गानों के जरिए, फुला के जरिए हम पड़ोसियों को तंग करते रहते हैं। और कभी हमारा घर, उनके घर आजू बाजू पड़ोसी बिल्कुल करीब है, तो जो है हम अपना कचरा जो है उनके सामने ढकेल देते रहते हैं, या हम अपनी गाड़ी हमेशा उनके मतलब जो है यानी स्पेस में हम लोग जो है हमेशा पार्क करते रहते हैं। और हमारे बच्चे बाजू वालों को बार बार जो है शरारत करके तंग करते रहते हैं। या हमारे पास कोई फंक्शन होता है और कोई जो है हमारे पास कोई तकरीब होती है, तो उसके जरिए भी हम जो है बाजू वालों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। अलगरज सताने के कई तरीके हो सकते हैं। तो जो अपने पड़ोसी को सताता है या फिन्नार, वो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नम में जाने वाली औरत है। और फिर जरा देखें आप, एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, आकर कहा अल्लाह का रसूल, एक मेरा पड़ोसी है और ये पड़ोसी बार बार मुझे तंग करते रहता है। तो अल्लाह का रसूल ने कहा सब्र करो भाई। देखो आप, अल्लाह का रसूल अपने पड़ोसी के तकलीफ पर सब्र की भी तालीम दे रहे हैं। यानी थोड़ा सताते ही फौरन रिएक्शन में आ जाओ, नहीं, फौरन एक्शन में आ जाओ, नहीं। थोड़ा अपने पड़ोसी जब होते हैं तो भाई कुछ न कुछ छोटी मोटी तकलीफ होती रहती है। हर तकलीफ पर रिएक्शन भी करना नहीं है, हर तकलीफ को भी इशू बनाना नहीं है, हर तकलीफ को भी मुद्दा बना के वो शोर मचाना नहीं है, बल्कि उसकी कुछ तकलीफों को बर्दाश्त भी करना है। सब्र करो का यानी एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ ठीक है सब्र करो। फिर वो आया, आके फिर कहते हैं कि अल्लाह का रसूल फिर वो तकलीफ दे रहा है। फिर आपने नसीहत की, नहीं तुम सब्र करो। देखो आप, यानी फिर सेकंड मरहले में भी आपसे कहा जा रहा है कि नहीं जो है जाकर तुम सब्र करो। फिर तीसरी मर्तबा आकर वही कह रहा है अल्लाह का रसूल वो मुझे बहुत सता रहा है, बहुत तंग कर रहा है। अब तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा, पहली मर्तबा भी मैंने तुम्हें सब्र कहा, तुमने सब्र किया, फिर उसने तकलीफ देना शुरू की तो फिर मैंने तुम्हें सब्र करने के लिए कहा, फिर तकलीफ दे रहा है। अब एक काम करो, तुम अपने घर जाओ,
घर जाकर जितना भी घर का सामान है वो सामान जो है घर के सामने जो तुम्हारा रास्ता है इस रास्ते पे डाल दो, घर के सामने के रास्ते में लाके डाल दो और तुम सामने बैठ जाओ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपना घर आए, घर का पूरा सामान निकाल के रोड पे डाल दिया, रोड पे डाल के बैठ गए। अब वहां से हर गुजरने वाला पूछ रहा तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम सामान रख ले यहाँ। जाहिर बात है कोई आदमी रास्ते में सामान रखकर बैठेगा तो कोई पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, अब एक फुल बिजी सिटी लाइफ में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन गांव में तो जो है, छोटे छोटे गांव में तो हर चीज की खबर होती है और हर चीज का रीजन पूछना चाहते हैं लोग, जानना चाहते हैं। अगर रियल में तकलीफ है तो साथ भी देते हैं उसका, अगर तकलीफ में है तो साथ भी देते हैं लोग उसका। तो पूछा भैया क्यों बैठे हो, इन्होंने कहा मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। तो हर गुजरने वाला सताने वाले पड़ोसी पर लान तान करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सबके नजरों में उसके सताना, उसका तकलीफ देना लोगों को मालूम होना शुरू हो गया। तो अब ये सताने वाला पड़ोसी देखा, अरे भाई हर गुजरने वाला मुझ पर लान तान कर रहा है, हर गुजरने वाला मुझे बुरा भला कह रहा है। चुनांचे वो आया, आके अपने पड़ोसी से कहा भाई अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं तुमको तकलीफ नहीं दूंगा, तुम अपना सामान लेके अंदर चले जाओ, तुम अपना सामान लेके अंदर चले जाओ। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टेक्निक से उसके पड़ोसी की इस्लाह फरमाई और फिर वो पड़ोसी सुकून से रहने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपना पड़ोसी सताता है तो पहले मरहले में सब्र भी करना है, सब्र भी करना है, सब्र भी करना है। उसके बाद भी तकलीफ अगर बढ़ जाती है तो ऑब्जेक्शन करने का हक भी है, उसको रोकने का हक भी है। उसको सही तरीके से कैसे रोका जा सकता है, जो मुनासिब तरीका है उस तरीके से उसको रोका भी जा सकता है। और यही वो पड़ोसी है जिस पड़ोसी के जरिए आदमी के खुशनसीब और बदनसीब होने का मेयार भी होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा अरबअ मिन अस्सादा, अरबअ मिन अस्सादा, 4 चीजें इंसान की खुशनसीबी की अलामतें हैं। 4 चीजें इंसान की खुशनसीबी की अलामतें हैं। अब मान लीजिए आदमी है और इसके 4 चीजें अगर हैं तो खुशनसीब है। अब पहला क्या है, अलमरतु सालिहा, नेक बीवी है, नेक बीवी है तो ये बहुत बड़ा खुशनसीब आदमी माशाल्लाह। वल जारु सालिहु, दूसरा नेक पड़ोसी है, नेक पड़ोसी है तो ये भी आदमी के खुशनसीब होने की अलामत है। अल-मरकबुल हनी, अल-मरकबुल हनी, अच्छी गाड़ी, नहीं सताने वाली गाड़ी, वो अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो भी खुशनसीब आदमी है। अल-बैतुल वासिउ, यानी किसी का थोड़ा कुशादा घर है, मेहमान आए तो आराम से रह सकते हैं, लोग जो है कुछ मेहमान बन के आए तो घर में आराम से रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, सो सकते हैं। अगर ऐसा किसी का घर है तो वो भी आदमी खुशनसीब आदमी कहा जाएगा। ये बहुत ही गुड लक आदमी है। और अगर इसके बरखिलाफ अलमरातुस्सू, अगर किसी के पास बीवी खिट पीट प्रॉब्लम पैदा करने वाली है, वो बदनसीबी की अलामत है। वल जारुस्सू, प्रॉब्लम पैदा करने वाला, सताने वाला मेरा पड़ोसी है, ये मेरी बदनसीबी है। गाड़ी है, बार बार काम निकलता, बार बार सताते रहती है, ये भी प्रॉब्लम की बात है। और घर इतना छोटा है कि लोग को आ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मेहमान आए तो जो है वो तंगी महसूस करते हैं, खुद भी तंगी महसूस करता है, तो ये भी बदनसीबी की अलामत है। तो गोया ये पड़ोसी अगर बुरा है तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। जो सताने वाला वो तो बदनसीब ही है, क्यों? ला युमिन कहा, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता, वो तो असल बदनसीब है। लेकिन उसकी वजह से ये मेरी जिंदगी भी जो अजर ना रही है तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। तो ऐसे बुरे पड़ोसी से निकल जाना या उसको निकाल देना दोनों भी नहीं है, तो सब्र करना और फिर उसकी इस्लाह के लिए
ہمیں کچھ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کل کے درس میں جانیں گے کہ پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک ہم کیسے کر کے اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ غور کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پہلے بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدلے میں ان سے بہتر سلوک کی توقع رکھنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.